my dear students. Now this is a time of examinations and examinations offline mode. So you need proper revision. I saw for class 10th and 12th there are so many platforms to revise. Revision sessions are there, sample papers are there, and lot many videos are there in YouTube and other platforms. But 8th class and 11th class both are very important. There I saw very few videos and very less material is there for revision. So here I am to give you revision work of the topics which are in 8th as well as in applied maths. Continue the revision with me. I'll give you the revision work, also some important points which you have to remember, you have to learn, and later on you have to use. And also one assignment sheet at the last of this video I'll give you. So let's get started. Hello my dear students. Today I am going to start first chapter. I am going to give you objective type questions only. Revision of first chapter, it is squares and square roots. Here are some points which you have to remember. The first point is a perfect square leaves remainder 0 or 1 when divided by 3. Very important. Next, a n digit number has 2n minus 1 or 2n digits in its square. This is also very important. Then there are 2n non-perfect square numbers, non-perfect square numbers between the squares of two consecutive numbers. Like what is the meaning? See, the meaning of third I am going to, suppose I want to find the non-perfect numbers between 15 square and 16 square. So how many numbers will be there? 2n, 30 numbers will be there. Then one more very important thing, it is, see, the number ending with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. This is very important property for doing objective type of questions. All these properties I have written to solve objective type of problems. The square of any natural number n is equal to the sum of first and odd natural numbers. This is important. Odd. Write it here. Odd. Odd natural numbers. See, look here. What I want to say you, like 3 square. 3 square is first 3 odd numbers 1 plus 3 plus 5. Suppose I want to write 5 square. This will be equal to first 5 odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. I want 5 natural numbers. So this will become how much? 25. The next is for every natural number n. Again very important. Which one I am going to discuss? I am going to talk about this one. See, this is for any natural number m greater than equal to 1, 2m, m square minus 1 and m square plus 1 is a Pythagorean triplet. Like suppose, see, I am given one number 32. So what will be other two numbers which will satisfy Pythagoras theorem? I can find with the help of this formula. This is also very important. One more important property is here. Any odd number can be expressed as sum of two consecutive positive numbers. Like 25, I can write 12 plus 13. I can write 49, 25 plus 24 plus 25. Alright. So all these numbers I can write in the form of, like I can write which one? Number 81 also I can write in the form of two consecutive numbers. Now children, let's move for the objective type of problems. Let us start and do it very fast. How fast? Try to understand. The first question is, which one of these is a perfect square? So see, look here, just now we saw a property, the numbers ending with 3, 7, 8
कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. So if these cannot be perfect square, so what is my answer? My answer is this. Last digit is 9. No need to calculate, no need to find any kind of perfect square. Now what is the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7? See, up to 21 I am not going to add. What will be my answer? Simply, how many odd numbers are there? See, up to 21 there will be how many odd numbers? 11 odd numbers. How will you calculate? Divided by 2. If I divide by 21 upon 22, this is 10.5. 10.5 means greater than 10. How many numbers will be there? More than 10. More than, exactly more than 10 is 11. 10 से बिल्कुल नेक्स्ट नंबर होगा, तो दैट इज 11. दिस इज स्क्वायर ऑफ 11. स्क्वायर ऑफ 11 इज 121. तो द सम इज 121. नाउ नेक्स्ट इज how many natural numbers lie between square of 29 and 30? Very important. अभी अभी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? 2n. तो what is the answer? 58. Now look at the next. If I go for the next question, fourth, if units place, again very important, if units place of a number is 0, then what will be the tens digit इन इट्स स्क्वायर? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, टेंथ डिजिट यूनिट्स प्लेस, सपोज 10 था, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100. 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400. तो जिसके यूनिट्स प्लेस में 0 है उसके परफेक्ट स्क्वायर के टेंस प्लेस में भी क्या होगा? 0. द आंसर इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1584.04? वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, डायरेक्ट देख करके बताना है. अब इसमें 41 जो है 40 से ज़्यादा है. देखो, जो भी नंबर 40 का स्क्वायर क्या होता है? 40 का स्क्वायर यू कैन इजीली राइट, स्क्वायर ऑफ 40 इज 1600. तो 40 से जो बड़े नंबर होंगे उनका स्क्वायर जो होगा क्या होगा? 1600 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1600 होगा. लेकिन ये 1500 समथिंग है. देखो, ये 41 है, ये 43 है, ये नन है, तो इसका मतलब इससे छोटा 39.8 है. दिस इज़ द आंसर. बिना कैलकुलेट किए माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं ये सारे ऐसे ही हो जाते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको क्या चाहिए? इनमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. लेट्स मूव फर्दर. अब थोड़ा सा मैंने ये लैंग्वेज टाइप का इनमें लिख दिया है. लेट्स सी द first question here. It is, what is the smallest number which divided by which 72 must be divided to get a perfect square, to make it a perfect square? तो आसान सा है. देखो, हमें क्या करना है? इस 72 के I will write the factors. 72 क्या होता है? 72 होता है 8 into 9. 8 means 2 into 2 into 2 into 3 into 3. राइट द प्राइम फैक्टर्स. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पेयर. 2 into 2, एक 2 तो है, और 3 into 3 ये भी पेयर में है. ये 2 का कोई भी पेयर नहीं है. तो टू मेक इट पेयर हमें क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा. देखो, 2 into 2 था, दूसरा भी 2 into 2 होना चाहिए, और तीसरा भी 3 into 3 होना चाहिए. तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? मैंने एक 2 से मल्टीप्लाई करना है. द आंसर विल बी 2. विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई? 2. क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे आप. अब इन फैक्टर्स में जिसका भी पेयर नहीं है, जोड़ीदार यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको आप यहाँ लिख देंगे. देखो, एक 2 कम था, 3 2 हैं इसमें, तो एक 2 और होना चाहिए. कितने 2 होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, तब इसका आंसर आता. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फाइंड एक्स. फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टॉकिंग. फाइंड एक्स व्हेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा, कितनी शॉर्ट, बहुत ही आसानी से हो जाएगा. देखो, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आई विल राइट 31 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर. देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो दिस वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देखो, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करने में, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में लगे रहेंगे तो इट विल टेक टाइम. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाउ मच? 61. कितना आ गया? 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 61.
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 61 माइनस 5 स्क्वायर, 61 माइनस 25 कितना आ गया ये होता है 36. देन व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. द आंसर इज, वैसे तो प्लस माइनस 6 होता है, ये स्क्वायर रूट किसी के भी 2 होते हैं, तो दिस इज प्लस माइनस 6 भी आप लिख सकते हैं और 6 भी लिखते हैं. देन 8th स्टैंडर्ड के लिए तो 6 ही काफ़ी है, बट 11th के लिए यू विल राइट प्लस माइनस 6. आंसर विल बी प्लस माइनस 6. लेट्स मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन. अब ये क्या बोलता है, देखो थर्ड क्वेश्चन में, दिस इज राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 22. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो स्मॉलेस्ट नंबर इज 22. अभी अभी आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर होता है 2n, देन 2 next n square minus 1 and n square plus 1. Now here what is 2n? 2n is 22. Then what will be n? n is 11. n 11 हो जाएगा. n 11 होगा तो n square minus 1 means 11 square minus 1 and 11 square plus 1. पहला नंबर 22, 22 121 माइनस 1 इज 120 और ये हो जाएगा 122. So these are the two numbers which will create a Pythagorean triplet. Now next देखो, next is what? It is square root of, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Find if square root of 50,625 is 225. Find the square root of this. देखो अब इसमें क्या है, बहुत ही, देखो डिजिट तो वही हैं 50625. इसका स्क्वायर रूट तो है 225. अब इसमें अगर एक डेसिमल लगा देंगे, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 1 डेसिमल, व्हाट इज दिस 22.5. और इसमें हाउ मेनी डेसिमल्स आर देयर, इसमें है 4. दिस इज 5.06250. हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स? डेसिमल पॉइंट्स आर हाउ मेनी 5. इसमें 0 लिखा है, देखो इस 0 की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुपिंग यहाँ से बनती है, इसमें राइट साइड से ग्रुपिंग बनती है, उसमें लेफ्ट से बनती है, तो ये तो एक्स्ट्रा 0 है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर. सो व्हाट विल बी दिस विल बी 2.25. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये ऐड करना है. आपका आंसर कितना होगा 22.5 प्लस 2.25. दिस इज योर आंसर. आपको सिर्फ देख के ही बताना है. प्लीज़ डोंट किल योर टाइम इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने में पूरा टाइम बर्बाद करते हैं. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले होता क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 999. ठीक है. अब 999 9999, इससे बड़ा होता है 10,000. ठीक है. 10,000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. किसका है? 100 का. अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा. ठीक है. लेकिन हमें क्या करना है 4 डिजिट, ये 5 डिजिट नंबर हो गया. इसका मतलब हमें क्या करना है 999 से छोटा, यानी 100 से नीचे वाला नंबर क्या होता है 99. इसका मतलब 99 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. देखो वो क्या होता है 9801. इफ़ यू रिमेंबर दिस, मैंने आपको वैदिक मैथ्स के कुछ जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें ये कराया था. लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय. बहुत अच्छा है. विच इज डिविजिबल बाय 8, 15. तो क्या करना है 8, 15 एंड 20. इसका निकाल दो एलसीएम. कितना आएगा इसका एलसीएम? फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके फैक्टर 3 इंटू 5, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5. सो लेट्स फाइंड इट्स एलसीएम. इसका एलसीएम निकालोगे
तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कोई अगला नहीं है। अब सी लुक हेयर, पेयरिंग बनाओ। ये 2 की तो पेयरिंग है, इसकी पेयरिंग नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ये 120 है अभी फ़िलहाल। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 120 को देखो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर होने चाहिए थे। ये 2 इंटू 2 एक पेयर है, इसका पेयर नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, मतलब एक 2 एक 3 और एक 5 आपको ऐड करने पड़ते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 30 होता है। तो दैट नंबर विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3600, 3600 विल बी योर आंसर। ऑल राइट, आंसर फॉर विच क्वेश्चन, फॉर सी दिस क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा 3600 होगा। कहाँ से आया, पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद पेयरिंग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एलसीएम आएगा 120, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो यू विल गेट द आंसर 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ गार्डनर सी अ गार्डनर हैज 1000 plants, all right. He wants to plant these in such a way that there are number of rows and number of columns are same. तो what find the minimum number of plants he need for this, बहुत ही important है। देखो ये ऐसे बनानी है, जितनी रोज यहाँ हैं ये रोज जितनी होंगी उतने ही कॉलम्स भी होंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ऑल राइट। सो दिस सपोज ये n रो है n कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपको कितना चाहिए, n स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। और अब आपको मिनिमम आपके पास हैं कितने, 1000 से बड़ा मिनिमम प्लांट्स और कितने लाएंगे आप, कि आपका ऐसा कोई एक ये बन जाए, गार्डन बन जाएगा, ठीक है। तो 1000 के नियरेस्ट आप क्या ढूंढोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढोगे। हाउ विल यू फाइंड, इसके नियरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो अगर इफ़ आई राइट, देखो सपोज लिखते हैं हम किसका परफेक्ट स्क्वायर, हम लिखे सपोज 25 का परफेक्ट, देखो ये 1000 है ना, 1000 में 30 का परफेक्ट स्क्वायर, 30 का अगर मैं लिखती हूँ तो वो कितना आता है 900, ऑल राइट। स्क्वायर ऑफ 30 इज 900, इसका मतलब 30 से ऊपर का नंबर है ये। 30 से ऊपर 31 का देखो और 32 का देखो, 31 का स्क्वायर आप देखेंगे तो दिस इज 961 एंड 32 का स्क्वायर, इफ़ यू सी स्क्वायर ऑफ 32 दैट बिकम्स 1024। देखो 1000 प्लांट्स आपके पास हैं, 1024 होते तो ये क्या बन जाता, ये एक आपका गार्डन स्क्वायर गार्डन बन जाता। तो फॉर दैट यू नीड 24 मोर प्लांट्स, दिस वे यू विल राइट। अब आपको हाउ टू राइट द आंसर, इम्पॉर्टेंट ये भी है, हाउ टू राइट योर आंसर। आप क्या करोगे, सी लुक हियर, आप लिखोगे सपोज मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स वी नीड x, राइट। देन अब आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए टू फाइंड number, a number which is a number greater than 1000, a perfect square number which is perfect square, which is perfect square. So what is that, अभी मैंने आपको बताया था वो आता है 32 का, अप्रोक्सीमेशन से ही निकाल सकते हैं। 32 का स्क्वायर इज 1024. So how many plants I need more? X is 24. I need 24 more plants. So now children, this is all about the problems.